Hello student, yesterday and day before the study uh, we have discussed the three-stage compression with water intercooler. Yesterday we have done a numerical on the three-stage water intercooler, and day before yesterday we have discussed the three-stage compression system with water intercooler. Now today we are going to discuss three-stage compression with flash chamber. As in last some videos I have discussed the function of the flash chamber, function of the intercooler, function of the flash intercooler, function of the water intercooler, and also in the class I have discussed these things. So the function of the flash chamber is to separate the liquid and the vapors. Okay, so function of the flash chamber to separate the vapor and liquid form of the refrigerant. When refrigerant from the condenser enter into the expansion, after the expansion we pass it through the flash chamber. Here you can see there are two flash chambers are mentioned. Okay, so in the flash chamber the vapor form and liquid form of the refrigerant will be separated. Vapor form goes directly into the compressor and liquid form goes into the evaporator, because there is no need of the vapor in the evaporator. Only the main function of in the evaporator is of liquid form of the refrigerant. Only the liquid form of the refrigerant will beneficial or is required in the evaporator to extract the heat from the lower temperature body. Okay, so if the vapor will be enter into the evaporator, unnecessarily the size of the evaporator will increase. So to reduce the size, reduce the cost of the cycle, we implement a flash chamber here which separate the vapor and liquid form of the refrigerant. Okay, as I told you, these equipment like the flash chamber, intercooler are not necessarily required in the domestic refrigeration or domestic air conditioning or domestic refrigerator. These are required in the very big plants in industry, because in the domestic refrigeration cycle the size of the evaporator not much reduced, क्योंकि वहाँ पर एवेपोरेटर इतना बड़ा नहीं होता है, थोड़ा वेपर जाएगा और थोड़ा कुछ नहीं जाएगा, तो उससे साइज पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. ओके, सो आपका यहाँ पर जो मास फ्लो हो रहा है कंडेंसर में वो हमने एज्यूम किया है एम इज़ द टोटल मास फ्लो इनटू द कंडेंसर. जब वो एक्सपेंशन वाल्व से निकलेगा, दी आर 3 एक्सपेंशन वाल्व E1, E2 एंड E3. जब वो एक्सपेंशन वाल्व से जाएगा और फ्लैश चैम्बर में इंटर करेगा तो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म और वेपर फॉर्म आपकी सेपरेट हो जाएगी. वेपर आपकी डायरेक्टली कंप्रेसर में चली जाएगी और लिक्विड आपका सेकेंड एक्सपेंशन वाल्व में चला जाएगा. सेकेंड एक्सपेंशन वाल्व में जाने के बाद आपका फिर से एक फ्लैश चैम्बर में जाएगा और वहाँ पर आपका ये लिक्विड वेपर जो रह गई है यहाँ पर वो फिर से सेपरेट हो जाएगी, लिक्विड और वेपर आपका, और फिर ये वेपर आपकी सेकंड इंटरमीडिएट प्रेशर कंप्रेसर में चली जाएगी और जो आपका लिक्विड होगा वो एक्सपेंशन वाल्व से होता हुआ इवेपोरेटर में इंटर कर जाएगा. ये इवेपोरेटर में से कंप्रेसर में जाएगा. कंप्रेसर से निकलने के बाद इसमें से जो वेपर जा रही है वो भी इसमें कंप्रेस होगी और वो भी इसमें आके मिल जाएगी. ओके, फिर ऐसे ही यहाँ पर जो वेपर जा रही है वो यहाँ से आएगा. ये आपका वेपर फॉर्म, जो ये वाला मास और ये 4 पॉइंट पे मास दोनों मिलके आगे जाएंगे और यहाँ पर जो वेपर फ्लैश चैम्बर से आ रही है, इस फ्लैश चैम्बर से जो वेपर आ रही है वो कंप्रेस होके फिर इसमें
मिलके चले जाएगा और टोटल मास जो m यहाँ से आया था वो यहाँ से सेपरेट होगा, यहाँ सेपरेट होगा, यहाँ सेपरेट होगा, इन अलग अलग जगह पे सेपरेट होगा। यहाँ पर सपोज़ करो ये m5 चला गया, यहाँ पर सपोज़ करो m3 चला गया, यहाँ पर सपोज़ करो m1 चला गया। तो ये सारे मिलके ये m1 टोटल है और ये आपका m इज इक्वल टू m1 प्लस m3 प्लस m5। इस तरह से ये साइकिल पूरी कंप्लीट होती है। ओके, so the function is the explanation of this diagram is not too much hard. So now we see the pH diagram of this schematic diagram. So what will be the pH diagram? पीएच डायग्राम प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम, प्रेशर आपका ये इस पे है और एंथैल्पी आपका ये है। दिस इज द एंथैल्पी और दिस इज द प्रेशर। ओके, आप उस डायग्राम को रिकॉल करते रहें। यहाँ पर आप पॉइंट 1 ये है आपका, तो आप देखेंगे पॉइंट 1 पे क्या हो रहा है। पॉइंट 1 पे जो है आपकी वेपर फॉर्म, आपका जो रेफ्रिजरेंट का वेपर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इट इंटर इनटू द कंप्रेसर, लो प्रेशर कंप्रेसर, और ये कंप्रेस हो रहा है 1 to 2। ओके, और ये सारे किस प्रेशर पे जा रहे हैं? डायरेक्टली पीसी यानी कि कंडेंसर प्रेशर। आप देखेंगे आप जो भी कंप्रेशन हो रहा है आपका डायरेक्टली किस प्रेशर पे हो रहा है? पीसी प्रेशर पे, कंप्रेसर प्रेशर पे ये हो रहा है आपका डायरेक्टली। इस पे आपका कंप्रेशन, सभी का जो कंप्रेशन हो रहा है यहाँ इस कंप्रेसर का जो के बाद जो 2 पॉइंट निकल रहा है वो भी इसी प्रेशर पे है, जो आपका 4 पॉइंट निकल रहा है वो भी इसी प्रेशर पे है, 6 पॉइंट पे एग्जिट हो रहा है वो भी इसी प्रेशर पे है। तो कंप्रेसर के जितने भी एग्जिट हैं वो सारे के सारे एक ही प्रेशर पे हैं, 0.2, 0.4 एंड 0.6। तो 0.1 पे कंप्रेसर में इंटर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड वेपर, और कंप्रेस होकर 0.2 पे ये एग्जिट हो रहा है, दैट इज़ द कंडेंसर प्रेशर। ओके, 0.3 पे इंटर हो रहा है और 0.4 पे एग्जिट हो रहा है। 0.3 पे इंटर हो रहा है और 0.4 पे एग्जिट हो रहा है। 0.5 पे इंटर हो रहा है, 0.6 पे एग्जिट हो रहा है। ओके, तो दिस इज द प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम। 0.5 पे इंटर हो रहा है, 0.6 पे एग्जिट हो रहा है। उसके बाद ये क्या है? 0.7 पे आफ्टर द एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर 0.7 है और ये सैचुरेटेड लिक्विड में एग्जिट हो रहा है। सैचुरेटेड लिक्विड आपका एग्जिट हो रहा है 0.7 पे और इसका मास कितना है? m। ओके, 0.8 क्या है यहीं देख लीजिए आप। एक्सपेंशन 3 के बाद 0.8 पे इंटर हो रहा है फ्लैश चैम्बर में, और 0.9 पे फ्लैश चैम्बर में से निकल रहा है लिक्विड, और 0.5 से फ्लैश चैम्बर से निकल रहा है आपका वेपर। ओके, तो आप इसको देखेंगे 0.8 पे क्या है इसका? अगर आप पीएच चार्ट सिर्फ इसका देखेंगे इस तरह से, ये पीएच चार्ट है, 0.7 पे ये एग्जिट हुआ और ये 0.7 है और ये 0.8 है। तो इट इज़ द वेट वेपर। वेट वेपर है तो इसमें क्या होगा? कुछ ड्राई वेपर, मतलब वेट वेपर है तो इसमें कुछ लिक्विड होगा और कुछ वेपर फॉर्म होगा, मतलब तो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शंस x8 मान लिया हमने। ओके, सिमिलरली इसमें से क्या हुआ? वेपर तो इधर चले गए 0.5 पे, वेपर क्या चला गया 0.5 पे, दिस इज द m5 मास, और यहाँ पे क्या आया था? टोटल m मास आया था, और इधर चला गया वो हमने मान लिया दैट इज द m9 मास। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ? वेपर तो डायरेक्ट कंप्रेसर में चले गए और ये सैचुरेटेड लिक्विड, सिर्फ लिक्विड रह गए, सैचुरेटेड लिक्विड में आया, और लिक्विड फिर एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा आपका, फिर ये इसमें से कुछ वेपर प्रोड्यूस हो जाएंगी, और फिर वो क्या है? ये यहाँ पर फिर बैट जो 10 पे निकलेगा वो क्या निकलेगा? बैट वेपर फॉर्म में निकलेगा आफ्टर द एक्सपेंशन 2। यहाँ पर एक्सपेंशन 2 अगर आप अपने डायग्राम में देखेंगे, सिमेट्रिक डायग्राम में पीछे, तो एक्सपेंशन वाल्व जो 2 एक्सपेंशन वाल्व लगा है, सेकंड एक्सपेंशन वाल्व लगा है, वहाँ से ये, तो यहाँ पर भी ड्राइनेस फ्रैक्शन इसका x10 है, तो इसका जो है मास यहाँ पर चला जाएगा 3 पॉइंट पे m3 मान लिया हमने वो, और इधर जो फ्लूइड जाएगा, सॉरी लिक्विड जाएगा वो सैचुरेटेड लिक्विड होगा, उसका हमने मान लिया m11। ओके, ये m11 फिर एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा, 1 एक्सपेंशन वाल्व में। ओके, और ये फिर इवेपोरेटर में इंटर करके और डायरेक्ट इसमें चला जाएगा।
कंप्रेसर में, फिर इस कंप्रेसर में जाएगा, ये वाला जो M5 आया 3 से इस कंप्रेसर में जाएगा, और फिर ये जो आया यहाँ से वो इस कंप्रेसर में कंप्रेस होगा 1 में। ये जो आया आपका M3 वो इस कंप्रेसर में कंप्रेस हुई वेपर, और जो M5 आया वो इस कंप्रेसर में कंप्रेस हुआ। ये सारे के सारे मिलके क्या बन गए, M, और फिर ये कंडेंसर में चला गया। नाउ दिस साइकिल विल repeated। okay, so this is all about the 3 स्टेज वेपर कंप्रेशन। अभी आपके इसके फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूले फिर आपको रटने नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। यहाँ से हम सारी एंथैल्पी फाइंड आउट कर लेंगे। ये 2 पॉइंट है, यहाँ से हम H2 पता कर लेंगे। ये 4 पॉइंट है, यहाँ से H4 पता कर लेंगे। ये 6 पॉइंट है, H6 पता कर लेंगे। ये H6 H4 कैसे पता होंगे ये मैं आपको बताऊंगा अभी। यहाँ से डायरेक्टली H1 निकल सकता है क्योंकि ये सैचुरेटेड कर्व पे है, आप कर्व पे देखेंगे डायरेक्टली निकल जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली H3 निकल जाएगा, ये डायरेक्टली H5 निकल जाएगा क्योंकि ये सैचुरेटेड कर्व पे है। इस प्रेशर पे आप जब pH चार्ट से वैल्यू देखेंगे, जब आप pH चार्ट से वैल्यू देखेंगे तो प्रेशर आपको पता होगा। सपोज करो ये 2 बार है, तो 2 बार से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, सैचुरेटेड कर्व तक। वहाँ पर कर्व होगा और वहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट 1 मिल जाएगा। ऐसे ही इस प्रेशर से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, इस सैचुरेटेड कर्व तक। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, H3। इस प्रेशर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट मिलेगा जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा इस कर्व को, वो H5। और यहाँ से जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपको, अब ये कैसे मिलेंगे, 2 पॉइंट और 4 पॉइंट 3 6 पॉइंट। इसमें आपको टेम्परेचर वगैरह तो दे नहीं रखा होगा, सिर्फ यही कंडीशन दे रखी होगी, प्रेशर की कंडीशन दे रखी होगी। और ये पता है 3 स्टेज कंप्रेशन है, तो यहाँ पर ये सैचुरेटेड वेपर में इंटर कर रहा है पॉइंट 1 पे, 3 पे एंड 5 पे, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये पॉइंट सारे मिल जाएंगे आपको 1 3 और 5। उसके बाद क्या है, 2 पॉइंट निकालने के लिए हमें पता है S1 इज इक्वल टू S2। दिस इज कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था। ये pH डायग्राम है। अगर आप TS डायग्राम इसका बनाएंगे, अगर आप TS डायग्राम बनाते हैं, ओके, तो इस तरह से आता है ये, लाइक दिस। ये पॉइंट 1 है तो कांस्टेंट, सॉरी, TS डायग्राम अगर बनाते हैं आप तो ये आता है कांस्टेंट एंट्रोपी, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। ओके, इसके बाद ये डी सेपरेटेड होता है, तो यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट है। ऐसी 3 पॉइंट से लेके यहाँ तक क्या होगा आपका, ये कांस्टेंट एंट्रोपी, ऐसे ये कांस्टेंट एंट्रोपी। ठीक है, तो सारे पॉइंट पे मतलब जहाँ पर भी आपका कंप्रेसर वर्क है, कंप्रेसर प्रोसेस है, वो क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, कांस्टेंट एंट्रोपिक प्रोसेस। ये कांस्टेंट एंट्रोपी है, ये कांस्टेंट एंट्रोपी है, ये कांस्टेंट एंट्रोपी है। ओके, तो S1 इज इक्वल टू S2 है, यानी कि ये पॉइंट हमें पता है पॉइंट 1, तो यहाँ पर हम S1 फाइंड आउट कर लेंगे। यही S1 लाइन कहाँ से पास होगी, S2 से। तो हम इस पता है S2 किस प्रेशर पे है, कंडेंसर प्रेशर पे। ये प्रेशर आपको गिवन होगा। इस प्रेशर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, जो ये वाली एंट्रोपी लाइन को इंटरसेक्ट करे, और वहाँ पर पॉइंट 2 हो जाएगा, एंथैल्पी निकाल लेंगे। ऐसे ही S3 इज इक्वल टू S4 होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट की एंट्रोपी सेम होगी। तो यहाँ से पास होता हुआ एक कर्व होगा जो एंट्रोपी वाला कर्व होगा, और वो एंट्रोपी किस प्रेशर पे है, पॉइंट 4, ये वाले प्रेशर पे। तो इस वाले लाइन को जहाँ कट करेगा पॉइंट 4, ऐसे ही इसकी एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, तो इस वाले कर्व को ये वाली लाइन जहाँ कट करेगी तो 0.6, उसके करस्पॉन्डिंग आप हॉरिजॉन्टल उससे एंथैल्पी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये pH चार्ट से सारा कुछ कैलकुलेट हो जाएगा और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल में आपको क्या निकालना है, वही चीज़ें निकालनी है। आपका COP फाइंड आउट करना होता है, मेन तो COP है। COP फाइंड आउट करना होगा। वर्क, उसके लिए वर्क डन, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ये अलग अलग भी पूछ सकता है, और मास फ्लो रेट, ये मेन चीज़ें हैं। अगर COP पूछ रहा है तो ये तो आपको निकालनी ही है, मास फ्लो रेट आपका वैसे भी निकल जाएगा। ओके, सो फॉर्मूले हम अगर देख लें इसमें थोड़ा सा। इफ़ M इज़ द मास ऑफ द रेफ्रिजरेंट लीविंग द कंडेंसर, जो कंडेंसर को लीव कर रहा है, एक बार देख लीजिए, वो हमने क्या माना है, M। यहाँ पर ये माना है हमने M5 इधर चला गया पेपर का, और M9 इधर चला गया।
ओके, ये M9 यहाँ तक आएगा, उसके बाद यहाँ से M3 चला गया और इसमें आ गया M11। ओके, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड वहाँ तक देखनी पड़ेगी या बार बार आपको अपना डायग्राम देखना पड़ेगा। डायग्राम आप बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं, सेम डायग्राम है। तो M5 मास वो मास है जो 0.5 पे इंटर कर रहा है, M3 वो मास है जो 0.3 पे इंटर कर रहा है, M9 वो मास है ऑफ द लिक्विड, और ये मास क्या है वेपर के, ये वेपर है, ये वेपर है, ये लिक्विड का है, ये लिक्विड का है। ठीक है, तो M9 वो मास है लिक्विड का जो आपका फ्लैश चैम्बर 1 में या एक्सपेंशन वाल्व 2 में इंटर कर रहा है। ठीक है, और M11 वो मास है जो फ्लैश चैम्बर 1 से एग्जिट हो रहा है लिक्विड फॉर्म में। ओके, तो M इज़ द मास ऑफ द रेफ्रिजरेंट लीविंग द कंडेंसर, ये सारा kg पर मिनट में रहेंगे जितने भी मास होंगे। M5 द मास ऑफ द सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट सेपरेटेड इन द फ्लैश चैम्बर 2 और इंटर टू द हाई प्रेशर कंप्रेसर। ओके, 0.5 पे हाई प्रेशर कंप्रेसर में इंटर हो रहा था, आपने देखा था। M5 फिर क्या होगा, M5 ये है M5, तो ये क्या है ड्राईनेस फ्रैक्शन, तो कितना ड्राईनेस फ्रैक्शन इतना है, सपोज करो ड्राईनेस फ्रैक्शन 60% ड्राई है, तो 0.6 इज द ड्राईनेस फ्रैक्शन। ओके, तो ये ड्राईनेस फ्रैक्शन से जो मास है इसमें M5 जा रहा है, ये M5 मास आपका अगर हम निकालें यहाँ से कितना आया, M आया, और M का कितना परसेंट इधर चला गया, 60%, यानी कितना परसेंट चला गया, X%, X8। तो जो M5 की वैल्यू होगी वो क्या होगा, X8 मल्टीप्लाई बाई M, क्योंकि ये ड्राई है, दिस इज द ड्राईनेस फ्रैक्शन। इतना ड्राई तो इधर चला गया, रिमेनिंग लिक्विड किधर चला गया, इधर, तो वो क्या होगा, M9, दैट लिक्विड इज M9। और M9 क्या होगा, टोटल तो यहाँ से कितना आया था, M आया था, M5 इधर चला गया और M9 इधर चला गया, तो कितना बचा, M9, M माइनस M5। ओके, यानी कि M माइनस X8 टाइम M कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस X8 टाइम। ठीक है, तो M9 की जो वैल्यू होगी या M5 की जो वैल्यू होगी, तो देखिए आप M5 की वैल्यू क्या है, X8 टाइम M, क्योंकि M तो टोटल आ रहा था, M5 इधर चला गया, दैट इज़ द वेपर, और M9 इधर चला गया, दैट इज़ द लिक्विड। 9 इज़ द मास ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड लीविंग द फ्रेश चैम्बर F2। ठीक है, तो जो वेपर का मास है वो M5 है, वो कितना है, M टाइम्स X8। M9 कितना होगा, टोटल M आया था, इसके दो पार्ट हुए, M5 और M9, वो क्या हो गया, M माइनस M5, तो उसको सॉल्व किया तो ये आ गया। ओके, नाउ द सेकेंड, एक बार फिर देख लीजिए आप, ये क्या है, M3, यहाँ पर लगा रहे हैं हम इक्वेशन, तो इसमें क्या है, M3 इज़ द मास जो आपका इधर फ्लो हुआ, और यहाँ से कितना मास आ रहा है, M9। ओके, और उसका कितना चला गया इधर, M11। ये तीन कंडीशंस हैं, तो आप देखिए M3 कितना होगा, वेपर, लिक्विड आया कितना, M9, टोटल मास कितना आया, M9, उसका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो X10 है, यहाँ पर जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो कितना है, X10 है। तो M3 तो इधर चला गया, M11 इधर चला गया, और आया कितना था, M9, तो टोटल M9 आया था, उसका X टाइम तो वेपर है, X10 टाइम तो वेपर है, तो ये तो वेपर क्या है, M3, और उसका लिक्विड क्या होगा, लिक्विड होगा आपका M11, और M11 किसके बाद होगा, M9 माइनस M3। M9 टोटल आया था यहाँ से, वो M3 में और M11 में कन्वर्ट हो गया, तो M11 कितना हुआ, M9 माइनस M3। M9 आपको पता है और M3 आपको पता है, इस तरह से देखिए आप, M3 तो ये निकाल लिया आपने। ओके, M3 तो ये आ गया, और M9 कितना था, M11 कितना है आपका, M11 M9 माइनस M3, तो ये M9 कितना है, दिस हम पहले कैलकुलेट चेक कर चुके हैं, M3 हमारा कितना है, ये, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो M11 आ जाएगा, M इंटू 1 माइनस X8, 1 माइनस X10। M1 इज़ द मास ऑफ द रेफ्रिजरेंट पासिंग थ्रू द एवेपोरेटर, एवेपोरेटर में कितना जा रहा है, M1 मान लिया हमने, और ये M1 कितना है, M11 के बराबर है। क्यों है M11 के बराबर, ये देखिए आप, M11 यहाँ लिख रहा है, यही आ रहा है,
M12, तो इसको हमने M1 मान लिया है, तो M1 इज इक्वल टू M11। ओके, यहाँ से M11 आएगा, पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट एवेपोरेटर में जाएगा। ठीक है, तो ये M, तो वो उसी के बराबर होगा। इफ़ नाउ द मेन फार्मूला, इफ़ Q इज़ द टर्न ऑफ रेफ्रिजरेटर, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेंट, Q इज इक्वल टू TR। इस TR को हम किलो जूल पर मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो 210 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 210 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या हो गया, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं, मैंने बार बार बताया है। कहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर, ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा आपका। और ये कितना होगा, H1 माइनस H12, ये एंथैल्पी माइनस ये H1 कितना है, इतना, और H12 कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। H1 आपका है दिस, और H12 है आपका ये, तो ये कितना हो जाएगा, H1 माइनस H12। ओके, इसको आप M1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें मास जो फ्लो हो रहा है एवेपोरेटर में कितना हो रहा है, M1, तो ये यूनिट और ये यूनिट क्या हो जाएंगी, सेम। फिर आपका M आ जाएगा, वो M किस में आएगा, किलो जूल पर मिनट में आएगा। ओके, और इसको क्या है, ये आएगा H1 माइनस H12। H12 किसके बराबर है, HF11। H12 किसके बराबर है, HF11। यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू देखेंगे, ये कांस्टेंट एंथैल्पी है। ओके, so you can see this is the mass flow rate। M1, now the work done in the lower pressure compressor। लोअर प्रेशर में M1 मास फ्लो हो रहा है, और उसकी एंथैल्पी चेंज हो रही है H2 से H1। M1 मास फ्लो हो रहा है, यहाँ पर M3 मास फ्लो हो रहा है, यहाँ पर M5 मास फ्लो हो रहा है। ओके, तो और इसकी ये कंप्रेशन प्रोसेस क्या हो रहा है, 1 to 2, यानी कि H2 माइनस H1, तो M1 H2 माइनस H1 इज द वर्क डन ऑफ दिस। ओके, सिमिलरली इसका वर्क डन M3 H4 माइनस H3। ओके, सिमिलरली H5 M5 H6 माइनस H5। M3 और H5 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन आप देख सकते हैं, आपने निकाल रखी हैं, वो पुट कर देंगे। तो आप देखिए, लोअर प्रेशर का जो कंप्रेशन का लोअर प्रेशर कम कंप्रेशन का जो वर्क डन है वो M1 H2 माइनस H1, और M1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ X 1M मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस X8 और X10। ओके, दिस। ऐसे ही इंटरमीडिएट का M3 H4 माइनस H3, और M3 की वैल्यू पुट कर दी ये। ठीक है, ऐसे ही हायर प्रेशर का M5 H6 माइनस H5 और H5 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ M। तो सारे वर्क डन इन टर्म्स ऑफ M आ गए, मास फ्लो रेट, टोटल मास फ्लो रेट। ओके, और टोटल वर्क डन क्या होगा, समीशन ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों कंप्रेशर का वर्क डन जो होगा वो टोटल वर्क डन होगा। COP क्या होगी, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन W। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपने वही निकाला था 210Q या M1 H2 माइनस H1। ओके, और अगर पावर निकालनी है तो पावर क्या है, वर्क डन का ही एक फॉर्म, यूनिट चेंज करनी है, तो पावर ये आएगा किलो जूल पर मिनट में। पावर हमें वाट में निकालनी होती है, तो मिनट को मल्टीप्लाई हम 60 से कर देंगे तो वो सेकंड में हो जाएगा। तो किलो जूल पर सेकंड क्या हो जाता है आपका, किलो वाट, यानी कि वर्क डन अपॉन 60 इज पावर। ओके, तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द 3-stage compression system with flash chamber. Next day we will discuss the numerical problem based on this. Thank you, students.